हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस class 12 CBSE NCERT. There is a most important question here. Question on your screen. Question here. Analyze the components of India as a security strategy here. You know that the question is very interesting. Analyze the components of India as a security strategy here. India's security strategy has a four-bodied component here. Four most important component here. The first component was strengthness. It is a military capabilities here. It is a first component here. Strengthening. It is a military capability here. The strengthenings there. It is a military capability, and the India has a decision to conduct a nuclear test in 1998 was justified by the Indian government in a term of safeguarding national security. That's important here. The first component was strengthening. It is a military capability, and there is a most important safety guard here. There is the nuclear test here. It's a 1998, and second component. The second component of India's security strategy has been to be strengthened international norms and international institutions to be protect its security interest. That's an important component here. Second, there is a strengthened international norm and international institution to be protect its security interest here. And the next, the third component of Indian security strategy is graded to avoid to meeting a security challenge within the country. Know that third component of Indian security strategy here graded to avoid to the meeting security challenge within the country. And the next year, several militiation group from areas such as Nagaland, Mizoram and Punjab and Kashmir among other have from a time started to be break away from India. You know that is the most important here. The several military groups for areas such as Nagaland, Mizoram and Punjab, Kashmir among the other have from time to time sought to be break away from India. And the next year, India has tried to be preserve a national unity by adopting a democratic political system. You know that India is a preserve to national unity by adopting a democratic political system. And at last, there has been to attempt in India to be developed it economic in a way that the vast marks of citizen is left out of poverty. That's important. There is a economical in way to that is a vast mass of citizen is left out of poverty. That's important component here. यहाँ क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन साफ है कि भारत की सुरक्षा रणनीतियों के घटकों का विश्लेषण करें। देखिए, भारत के पास सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चक्र है। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के कौन कौन से इसके घटक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भारत को बनाता है। और देखा जाए तो आज के समय भारत
किसी भी देश से पीछे नहीं है और इसके लिए कुछ घटक हैं जो इसको मजबूत बनाती है। तो देखा जाए पहला घटक तो यही माना गया है कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। भारतीय सैनिक क्षमता जो है विश्व के महत्वपूर्ण सैनिक क्षमताओं में से एक माना जाता है और भारत जो है दिन प्रतिदिन अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता जा रहा है। और देखा जाए 1998 में परमाणु परीक्षण करने से भारत के निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उठाया गया उचित कदम था, जिसको पूरा विश्व ने ठहराया था। जो भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था पोखर में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो उस समय सभी देशों ने भारत की आलोचना की थी, लेकिन फिर भी भारत ने जो है अपनी परमाणु परीक्षण करके अपनी जो है सुरक्षा के अंतर्गत भारत को आश्वस्त कर दिया कि अब भारत जो है सुरक्षा के घेरे में आ चुका है और ये परमाणु परीक्षण इसका सबूत था। और देखा जाए जो 1998 में परमाणु परीक्षण करने से भारत के निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उचित ठहराया गया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण करना और अपने देश को मजबूत करना हर एक देश का कर्तव्य होती है और इस पर कोई देश जो है किसी प्रकार का रुकावट नहीं डाल सकता और यही जो है भारत ने किया। तो देखा जाए भारत की सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत पहला घटक तो है उसकी सैनिक क्षमता। दूसरी की अगर हम बात करें कि भारत सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना है। तो दूसरा तो आप समझ गए होंगे कि भारत अपनी सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करता है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं भारत सरकार के द्वारा उसको मजबूत की जाती है, उसको एक नया रंग दी जाती है, नया रूप दी जाती है, जिससे कि विश्व में हर जगह हम अपने आप को सक्षम खड़ा पाएँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम तीसरी घटक की बात करें तो भारतीय सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यानी देखा जाए तो भारत को आंतरिक खतरा भी बहुत बनी रहती है। भारत में आंतरिक खतरा भी बहुत भरी रहती है, क्योंकि भीतरी सुरक्षा भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती तैयार करता है। देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर भारत से अलग होने की कोशिश की है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन भारत के लिए चुनौती तो था, लेकिन इसकी सुरक्षा नीतियों ने जो है इनको अलग नहीं होने दिया। और ये सब से बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्र, जो सदैव ही अपने आप को अलग थलग समझते हैं। कहते हैं जब तक आप अपने आप को इस भारत देश के पार्ट नहीं समझिएगा तब तक जो है आप अपने आप को अलग ही पाइएगा। और देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर हमेशा ही उग्रवादियों का निशाना रहा है और उग्रवादियों का जो है मेन अड्डा रहा है, जहां पर हमेशा जो है इन चार देशों को तोड़ने के लिए उग्रवादी जो है हमेशा गतिशील रहती हैं। लेकिन भारत सरकार की जो सुरक्षा नीतियों के कारण ये देश अभी भी जैसे का तैसा है, इसमें अलग कोई भी अभी नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी समय समय पर करती है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो भारत ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का प्रयास सदैव किया है, कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। और देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक जो है आज़ादी के समय से ही बहाल है, जिसको किसी ने भी अभी तक हिला नहीं सका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की सदैव प्रयास किया है। लेकिन आने वाला समय में जो है इस एकता को जो है खंडन करने में बहुत से बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, जो भारत की एकता को ख़त्म करने के लिए हमेशा प्रयासशील है, जो सही नहीं है। देखा जाए तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है।
देखा जाए तो हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन आने वाला समय में यहाँ पर बहुत से ऐसे नेता हैं जो धर्म के आड़ में जो है देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। भारत लोकतंत्र देश है, यहाँ पर सबको जो है अपना विचार रखने का पुण्य अधिकार है, विचार समझने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है। कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी करवा नहीं सकता। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं भारत में अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया है कि बड़ी बड़ी संख्या में नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं इसे नागरिकों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो भारत आज भी गरीबी रेखा से जीवन व्यतीत करने वालों की जनसंख्या कम नहीं है और ना तो भविष्य में होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो भारत सरकार की कुछ न कुछ नीतियां ऐसी है जो देश के विकास में जो है रुकावट डाल रही है और उसको एनालाइज करना ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर है। देखिए, कहते हैं शेयर ही इंसान की सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो दूसरे बच्चे तक भी पहुंचना चाहिए। यही तिरपान स्टडी सेंटर का मदद हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मदद करता है वही आगे बढ़ता भी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात बनती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ये मोबाइल में आपका सेव हो पाएगा। और आप सोचिएगा कि ये तो 12वीं तक ही है, इसको आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मत सोचिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाला समय में भी तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल बन सकता है और आपके जो पीछे आ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।